हेलो, गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी करने वाले हैं। फॉरेस्ट्स आवर लाइफलाइन, चैप्टर नंबर 17, क्लास 7। Friends, this chapter is also important for the competitive exams and also the student of class 7. I shall tell you the portion of this chapter you have to write down on your notebook, which you have to memorize for your exams. तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें और इसको समझते रहें। मैं एक लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगा और इसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। जो पोर्शन मैं आपको बताऊं किसे आप नोट डाउन करें, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कर दें और इसे सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें, फ्रेंड्स को रेकमेंड करें। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट दिस। One evening, Buzu entered the park with an elderly person. He introduced him to his friend. Mr. Ahmad was a scientist working in the university. The children started playing while Mr. Professor sat on a bench in the corner. ये एक चैप्टर को स्टार्ट करने का प्रोसीजर है ना, कि भाई कैसे क्या है ये सब है। आप देखिए, व्यू ऑफ ए फॉरेस्ट का व्यू आप सबने देखा ही होगा गांव सब में। विजिट टू ए फॉरेस्ट, यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, आई थिंक सो, है ना। तो व्हाट इज दिस इज द फॉरेस्ट एज ए हैबिटेट। अब बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे कि मंकी है ना, डियर है और लॉयन है। इन सब का अपना एक हैबिटेट है, रहने का हैबिटेट है। जैसे हमारा हैबिटेट है कि हम गांव में कई लोग अपना घर बना के रहते हैं, सिमिलरली सिटीज में रहते हैं, वैसे इनका हैबिटेट है। ठीक है ना। अब देखो, सम फॉरेस्ट एनिमल्स, ठीक, दीज आर द सम फॉरेस्ट एनिमल्स। एंड नाउ वी कैन सी सम ट्रीज। तो दिस इज द नीम ट्रीज, दिस इज द सीसम, है ना। ऑल दीज आर द ट्रीज, बैम्बू। These are the activities, friend. Some crown shaped trees. This is the canopy. Long trees. And the story, small trees. है ना? Now the main thing you have to understand, what is the reason behind this, that these trees, some trees are long and some trees are short. So you have to note down this portion. Due to the climatic condition, there are variation in the types of trees and other plants. What is the main reason? Climatic condition. What are the reasons? Climatic conditions. So you have to note down this. These are the activities, and we will understand this picture because this picture is very much important to understand. This whole process, we can say that how the cycle of whole nature, plants, soil and decomposers and forests takes place. So look at this. This is the sun. Now this tree takes carbon dioxide by the roots. They take nutrients. There are also some decomposers
which provide them some minerals, and after the whole process the tree exhale oxygen. There is also water in the soil which the roots uses it, and I have already told you my another video. I have told you that there are two-way circulation. One way the water reaches to the leaves, and second way the nutrients also come down to the roots. Some nutrients. Now we will understand what is humus. This is the important thing. Dead plant and the animal tissues and convert them into dark colored substances is called humus. Dead plant and animal tissues. So what is the humus? Write down equation. Dead plant plus animal tissues. This is the called humus. What is the decomposer? Write down this also. The microorganism which convert the dead plant and animals to humus are called decomposers. The microorganism which convert dead plants, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के जो ऐसे पार्ट हैं जो डेड हो गए हैं, जैसे लीव्स हैं, कुछ और पार्ट हैं, और एनिमल्स हैं वो भी डेड हो गए, तो इन सबको क्या करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कन्वर्ट कर देता है ह्यूम्स में. ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स. इसको अब नोट डाउन कर लें. Now look at this picture. Transpiration and evaporation. The closed canopy and many leaves of the vegetation slow down in the speed of raindrops. ठीक है, जो छोटे हैं उनके ऊपर जो ये प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन की कम हो जाती है, और जो लंबे ट्रीज होते हैं जो ऊपर होते हैं वो उनकी और प्रवृत्ति होती है और ऊपर बढ़ने की. ठीक है ना. द रूट सिस्टम हेल्प द वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड. अब यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक, तो ये जो रूट्स हैं इनके थ्रू जो वाटर है ये नीचे की ओर ग्राउंड वाटर में चला जाता है. ठीक है ना. तो अगर आपको कहीं पर भी ग्राउंड वाटर रिस्टोर करवाना है तो आपको क्या करना होगा? काफ़ी ट्री इम्प्लांट करने होंगे. ठीक है, तो टोटल यही है ना. अब हम इसे देख लेते हैं, इसे हम लिख लेंगे. The wide variety of animals help the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and vitality. ठीक है ना. डायनेमिक लिविंग एंटिटीज है. अगर अब इसमें एंटिटीज को डायनेमिज्म को अगर हम कम करते जाएंगे धीरे धीरे तो इनका जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो क्या है? ये एक डायनेमिक लिविंग एंटिटीज है फॉरेस्ट. इसको हम समझ लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ का. ये डे टू डे लाइफ है. नंबर 1 देखें आप, नंबर 1 ये है फिगर. द फॉरेस्ट देखें, ये समझ लेते हैं. समझने के लिए
if forest disappears, the amount of carbon dioxide in the air will increase, resulting in the increase of earth temperature. ठीक है ना, जब फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट अगर ये डिसअपियर हो जाएंगे तो जो ये जो गाड़ियां हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंक्रीज हो जाएंगी मार्केट, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इससे निकलती है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और आगे आने वाले क्लासों में आप पढ़ोगे ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या पढ़ोगे बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या की वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ जाता है। नंबर 2 क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अब जब कुछ रह ही नहीं जाएगा, कोई ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे आप देखोगे तो छोटे छोटे चिड़िया और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये रह भी नहीं जाएंगे, छोटे छोटे जंतु जानवर, है ना। नंबर ये देखें, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड। अब अगर ट्रीज नहीं होंगे तो जो हमने अभी ऊपर बताया था, फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। ये देखो आप, और यहाँ ट्री है नहीं, एक्सेसिव वाटर हो जाएगा तो फ्लड आने का ना, भले ट्रीज हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी ये दिक्कत आ जाएगी। ठीक, अब डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर अवर लाइफ इन द एनवायरमेंट, थिंक व्हाट यू कैन यू डू इन प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। अब जैसे ये है मैडम, अब इन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि यहाँ ट्रीज नहीं है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपको सफोकेशन फील होने लगेगा। ठीक ठीक, देखो मैंने आपको कैनोपी बता दिया था भाई, ट्रीज हैं, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जो जो ठीक है ना, जहाँ ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है वो ट्रीज की हाइट बढ़ती जाती है उन्हें। ठीक है, क्राउन डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोजिशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफॉरेस्टेशन जंगलों की जो वैरायटी है ना, उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है। ह्यूम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, इनका जो वेस्ट होता है इन्हें कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ह्यूम्स कन्वर्ट हो जाता है। लैंड में सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट यही होता है सॉइल का। रीजनरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में क्या, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिर वहीं आ गया। ठीक है ना। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, सीड्स को कई सारे चिड़िया पक्षी ये सब अपने मुंह में ले जाते हैं ना, और एक जगह से दूसरी जगह डाल देते हैं। सॉइल इरोजन अंडर स्टोरी, सॉइल इरोजन मैं पढ़ा ही चुका हूँ, अंडर स्टोरी में पिछले चैप्टर में आपको दिखाई चुका हूँ। सॉइल इरोजन किसके तरह होता है, वेदरिंग के थ्रू होता है। ठीक है ना, बहुत तेज बारिश हुई, आंधी तूफान, तो इससे क्या हो जाता है, सॉइल इरोड हो जाता है। ठीक है ना, इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक, अंडर स्टोरी छोटे जो पेड़ होते हैं उनको अंडर स्टोरी कह दिया। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, एंड आप देखते रहे वीडियो, सभी वीडियोस को देखें, अच्छे से देखें, बार बार देखें, उनको समझें बार बार। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।